Welcome to the iTutorial of Tagore PG College. As you all know, this is the class for Python for BCA second year. Whether it is BCA second year or any other undergraduation stream, it is very much valuable to you. If you learn it, it is very easy to maintain and very easy to work with it. So in the previous session, we have read about the installation, program structure and one example of Python. So we have features here. So first feature is easy to maintain, as we have already discussed with some features in the previous session also. So very easy to maintain. First program से ही आपको पता लग गया होगा और इजी टू रीड है क्योंकि जब आपने इसका विंडो ओपन किया होगा और प्रोग्राम बनाया होगा, इसके फॉन्ट्स और इसके फॉन्ट्स का साइज जो है टेक्स्ट का बहुत ही इजीली विजिबल है एंड इजी टू प्रोग्राम है, extendable है, like you can add some more features, more packages to it according to your requirement. Like maths package is there, NumPy is there, and for graphs it is Matplotlib is there, and for further more GUI programming Tkinter is there. So it is an extendable language. Portable है, हमने पहला पॉइंट यही डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में कि पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे रन कर सकते हैं, वेदर इट इज मैक ओएस और वेदर इट इज विंडोज या लाइनक्स. पाइथन सभी के लिए है और बहुत ही आसान और एक सरल लैंग्वेज है. एंड इट ऑल्सो वर्क्स विद द डेटाबेसेस. डेटाबेसेस ये सभी तरीके के जो लेटेस्ट डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं, लाइक MySQL है, MongoDB है, ये उन सभी के साथ वर्क करती है और बहुत अच्छे से वर्क करती है. Wide standard library है, it has a lot of library files which you can use and easily maintain your programs. And interactive mode is there, it interacts with you very easily and very friendly, and I'm sure you will like it. GUI programming is there, you can make text boxes, you can use colors, and like in Windows you see all the features like GUI, graphical user interface. It also provides graphical user interface programming with the Tkinter package, and it is also scalable. Like it has a very compact and very easy to understand structure which you can maintain easily. So in today's class we have just learned the features के Python की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें Python क्यों यूज करनी चाहिए और Python ही क्यों. बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल भी आता है. तो ये सब फीचर्स जो आपने पढ़े तो आप समझ भी गए होंगे कि Python जो है बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है. इसके साथ साथ हमने कुछ और फीचर्स भी डिस्कस किए थे. Students, ये object oriented language है, like the basic Python provides you the basic programming, and the core or the advanced Python provides you working with classes and objects. It also deals with the exceptions, and some more features are also there. So let's start with the programming, and today we will know, आज हम जानेंगे कि यदि यूजर से हमें इनपुट लेना हो तो हम कैसे Python में वर्क करेंगे. तो स्टेटमेंट इज okay, so here the question is how we will get input from the user while running a program. Sometimes we need, हमें ज़रूरत होती है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है हमें तभी यूजर से इनपुट कराना होता है. तो वो हम कैसे कराएंगे. देयर इज अ स्टेटमेंट इनपुट. उसके लिए सिंपल सा स्टेटमेंट है इनपुट. आप उसका कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं. हमने यहाँ पर मैसेज दिया एंटर योर नेम और हमने इसे क्लोज कर दिया. बट इनपुट जाएगा किसमें. क्या हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लगाया है? नहीं लगाया ना. तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं nm. nm के अंदर हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया और अभी जो भी यूजर प्रोग्राम को रन करते वक्त इनपुट डालेगा इज अ टेक्स्ट, अपना नाम डालेगा, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, नेम में स्टोर हो जाएगा. एंड नाउ वी हैव टू प्रिंट दैट नेम. अब वो नाम हम कैसे प्रिंट करेंगे. पिछली सेशन में हमने पढ़ा था कि एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है
पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से आप नाम प्रिंट कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू प्रिंट योर नेम, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? सो आप लिखेंगे डबल कोट्स के साथ माय नेम इज, एंड देन यू विल क्लोज with double quotes, put a comma here, and then the variable is there nm. So there is a 2-line program to get and to print your name. This is for text. Like ये text के लिए आप कैसे करेंगे ना? Now अगर आपको कोई numerical variable लेना हो, like integer टाइप का या float टाइप का, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक solution है। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, हम सेकंड सेशन में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे। a इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर इनपुट तो लगाया ही, इनपुट एंटर अ नंबर, बट हाउ दिस इनपुट विल गोज टू a। जैसे आपको लगा कि टेक्स्ट चला गया, वैसे a में चला जाएगा, नहीं, टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर ही a में जाएगा। बट अब हमें यहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत है, हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। देन वी विल पुट हियर इंट पुट करेंगे, और यहाँ पर हम इस इनपुट स्टेटमेंट को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। एंड एज यूजुअल वी विल कैलकुलेट इज अनदर वैल्यू और एनी टाइप ऑफ अदर कैलकुलेशन दैट वी वांट ऑन a. Like we want the square of a. How we will do square? Print. We will put a statement here. Square of a is, and then a into a. And what you will find after running or after executing this program, the square of a. For example, if you put a's value 2 or 4, if you put a's value 2, then the square will be what? 4. So it was a simple program to get input from the user and calculating it, and after that printing the appropriate result or output. Okay, then our next session is decision making statements. You all are well aware of the decision making statements. Like in the daily life, in our routine life, there are so many of conditions, so many of situations where we have to choose one situation, and then we follow the relative task related to that situation. In the same manner, while doing programming or while making a program of a particular problem, we need to take some decisions according to that problem. So ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में, उन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, है ना? सिंपल सी डेफिनेशन। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास है इफ एल्स। आपने ये स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? लाइक पाइथन में एक चीज़ है, स्टेटमेंट्स और इंडेंटेशन का हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। एक थोड़ा सा स्पेस इधर से उधर हुआ नहीं और हमारे स्टेटमेंट में अच्छे से लिखे हुए करेक्ट स्टेटमेंट में एरर आ जाती है, और कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि वो एरर किस टाइप की है। हम सभी तरीके के स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं होती, कोई लॉजिकल एरर नहीं होती, और फिर भी हम एरर फेस कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम स्पेसिंग का सही से यूज, सही से एप्लीकेशन नहीं कर पाते। तो इफ एल्स के जो स्टेटमेंट है उनमें भी आपको इंडेंटेशन और स्पेसिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ, उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स यानी कि द राइट फॉर्मेट टू अप्लाई इफ एल्स in your program so that you get the relevant and very accurate result. So first we will write if, not in capitals, not in capital small, simply we write if. Then we will apply brackets here, then expression will be there. expression जो condition आप चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लाइक आपको इक्वल्स टू चेक करना है, ग्रेटर देन चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक करना है, कुछ मतलब कोई भी कंडीशन जो आपको लग रही है कि आपने यहाँ चेक करनी है वो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लिखते हैं, उसे ही हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। और फिर आपको यहाँ पर लगाना है कॉलम।
देखिए कॉलन में और सेमी कॉलन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कॉलन जो है दैट फॉलोज विद 2 डॉट्स, 2 डॉट्स जो कि ऐसे वर्टिकली प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। एंड सेमी कॉलन इज 1 सिंगल डॉट एंड 1 कॉमा इज देयर। ऊपर जो है वो सिंगल डॉट है, नीचे कॉमा है, दिस इज द सेमीकोलन। सो बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द कॉलन विद द इफ एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर कॉलन लगाना जरूरी है। आप जब कॉलन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कंट्रोल में जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंडेंट्स सेट कर देता है आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। तो जैसे ही आप कॉलन टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस पोजीशन। थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके वो अपने आप आपको एक पोजीशन पर ले आएगा। आपने अपना जो स्टेटमेंट लिखना है वो उस पोजीशन से ही लिखना स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देने हैं, तो जो दूसरा स्टेटमेंट आप पहले स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद देंगे तो उसके लिए भी बिल्कुल यहाँ पे उसी के नीचे कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर देगा। बट अगर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं देना है तो आपको थोड़ा सा बैक स्पेस करके पीछे आना पड़ेगा, लाइक इफ की लेवलिंग में, एंड देन यू विल पुट एल्स। आप एल्स लिखेंगे, फिर अगेन आप कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा स्पेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा पाइथन के द्वारा, और फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। So this was whole about the decision making statement and its structure. So let's see an example for if. if के लिए जो example है उसमें सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं particular number के लिए, like here is a number we get with the help of int and input statement. Input, enter a number. मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। ब्रैकेट्स आप कंपेयर कर लीजिएगा, जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की हैं उतनी ही ब्रैकेट्स क्लोज भी होनी चाहिए। ओके, देन वी विल अप्लाई इफ स्टेटमेंट। इफ ए को हम कैसे चेक करेंगे कि हमें ए का रिमाइंडर चेक करना है। सेम वी विल अप्लाई दिस कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जो है क्या इसका वो 0 आता है। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। और अगर हम कोई एक सिंपल सी कंडीशन बनाए कि वेदर ए इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, तो वो भी लगा सकते हैं। लाइक इफ हमने लगाया, इसका जो लेवल है स्टेटमेंट्स का वो सेम रखिएगा ऐसे। इफ अप्लाई करेंगे हम a ग्रेटर देन 5, ये लगाया हमने कॉलन, सिंपली वो हमें यहाँ पर ले आएगा और हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर तो a जो है वो 5 से ग्रेटर है देन इट विल प्रिंट यस ग्रेटर, एंड देन एल्स अगेन दिस कॉलन इज देयर एंड एक थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रिंट नॉट ग्रेटर। सो हियर इज अ प्रोग्राम, नो क्लोजिंग नो स्टार्टिंग, बहुत ही इजी है प्रोग्राम बनाना। अब ये बात मत भूलिएगा कि प्रोग्राम बनाने के बाद आपको इसे रन भी करना है, और रन आप किससे करेंगे, उसे सिंपली F5। और ये तो आपको याद ही होगा कि आप प्रोग्राम बना किस में रहे हैं, आप पाइथन में बना रहे हैं। और पाइथन की विंडोज ओपन करने के बाद आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू ओपन करते हैं, न्यू से आपको एक स्क्रिप्ट फाइल मिलती है, वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग करते हैं और फिर सिंपली F5 करके रन कर देते हैं। ओके, हमारा आज का सेशन जो है कंसेप्ट्स का वो तो यहीं तक है, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारे टास्क भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, विच यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक और इन योर एप्लीकेशन। आप उसे अपने एप्लीकेशन में डेवलप करेंगे उन सभी प्रोग्राम्स को, और अपनी नोटबुक में राइट अप भी करेंगे। So students, here is the assignment for our today's session. The assignment is here. You have to write a program for these
problems. So what are these problems? First problem is you have to calculate the simple interest. The requirement for simple interest you know very well, and if you don't know, you can see. Then the second is to calculate the area of triangle. So what are the sides of triangle and what is the formula, you know very well, and you have to program for calculating area of triangle in Python. The next program is you have subjects and subjects marks. Then you have to perform total, their percentage, and then you have to check for the status whether the student is pass or fail. Then you have to create an arithmetic calculator for two values, and how you will calculate, how you will create it, you will apply if statement, and you will perform these operations: plus, minus, multiply and divide. Then you have to calculate cube of a value like that. A cube is there. How you will calculate? So you have to create a program here. Then you have to check whether an year is leap year or not. Next, seventh is you have to get age of a person, and then you have to check for the voting status, like if the age is greater than 18, then 18 or equals to 18, then the person is eligible for voting, otherwise he or she is not. Then the last problem is very simple. I have given some hint. Meanwhile, during the session, I was applying some statement, and again I have dropped it. So here you have to check a number whether it is even or odd. You all know even numbers which are divisible by 2's, and the odd values which are not divisible by 2, or the values which comes in the 2's table. So that's all for today's session. So for you have to like this video, share this video much and much more, and for more valuable education concepts, watch this iTutorial of Tagore PG College in the future session. Thank you.